السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نماز فجر کے بعد سونا ایک راز ہے۔ 90% لوگ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق نہایت حکمت اور تدبیر کے ساتھ فرمائی ہے۔ زندگی گزارنے کے جو اصول اللہ نے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہمیں سکھائے، وہ انسان کی جسمانی، روحانی اور معاشی بھلائی کے ضامن ہے۔ انہی اصولوں میں ایک اہم معاملہ نماز فجر کے بعد کے اوقات کا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز فجر کے بعد سونا درست ہے یا نہیں؟ تو پیارے ناظرین، قرآن اور سنت کی روشنی میں ان سوالوں کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا خون نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبادت ہو اور اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار کیا، وہ اس کی تربیت کرنا اور عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ ترمینات عبادت ہے۔ انہیں ارکان اسلام میں بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہیں ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سرفہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادت میں جو نماز کو جو اہمیت فضیلت حاصل ہے، وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا حکم جلدی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے، وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کو دینی پہچان اور امتیاز نشان ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن بعد حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہیں۔ بے فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اسے وہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے، اس کی وجہ آبری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقت نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور وسیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر اور ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں میراث ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم اور گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا پرمشقت اور نفس کو جیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس کی نیکی کرنے سے مشقت زیادہ ہو اور نفس اور شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر اور ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا فجر کا وقت صرف عنقریب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے 5 نماز کے بارے میں جانیں جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہیں۔ یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئی، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے نوازا، انبیاء اکرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور بروں کے انجام اور نجات کا نظارہ دکھایا۔ اس عجم سفر میں بہت سے
नवाजा गया, जिनमें से एक खास इनाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफा भी है और कयामत तक के लिए इंसानों को अपने माबूद और खालिक से करीब तर करने का अजीम तोहफा और इबादत यानी नमाज इस सफर में अता की गई। मेराज की रात जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 50 नमाजों का हुक्म दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह से 50 नमाजों में नरमी की दरख्वास्त की और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिन में 5 नमाजों का हुक्म दिया, जिसके बाद भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने का मशवरा दिया। लेकिन तब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मर्तबा दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राजी हूँ और इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। हर नमाज पढ़ना जरूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाजों में सबसे ज्यादा मुश्किल नमाज फजर की नमाज होगी, जिसमें नींद का गलबा इस कदर होता है कि इंसान मुश्किल से उठ पाता है। लेकिन दिन के इस खास हिस्से में जो राज पोशीदा है, इसे जब आप जानेंगे तो यकीन करें आपकी फजर की नमाज कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। यहाँ नमाज फजर के कुछ फजाइल समात फरमाएं। 5 नमाजों में से सबसे ज्यादा अहम नमाज फजर की है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएंगे कि अल्लाह ताला फजर के वक्त की कसम उठाता है और फरमाता है, कसम है फजर की और 10 रातों की जो जुफ्त और ताक की और रात की जब वो चलने लगे, यकीनन इसमें अक्लमंद के लिए बड़ी किस्म है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फजर की 2 रकतें दुनिया माफिया से बेहतर हैं। याद रखें कि फजर के बाद जमात नमाज एक मुसलमान की सदाकत और इसका ईमान रखने की कसौटी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हम अगर फजर और इशा की नमाज में किसी आदमी को ना पाते तो इसके बारे में अच्छा गुमान नहीं रखते थे। फजर की नमाज जहन्नम से हिजाब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले की नमाजें यानी फजर और असर पढ़ता है वो हरगिज जहन्नुम की आग में दाखिल ना होगा। फजर की नमाज जन्नत की जमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 2 ठंडी नमाजें यानी फजर और असर पाबंदी से पढ़ता है वो जन्नत में दाखिल होगा। फजर की नमाज न पढ़ने पर हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जो सुबह होने तक सोता रहा, यानी फजर की नमाज अदा नहीं करता था, तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे शख्स के कानों में शैतान पेशाब करता है। फजर की नमाज के लिए किस तरह उठें? नंबर 1, रात को हतमी अला अल मकान जल्दी सोएं। नंबर 2, सोते वक्त फजर की नमाज जमात अदा करने का पुख्ता इरादा रखें और इरादा करने में मुखलिस भी हों। नंबर 3, ऐसे इस्तक इख्तियार करें जिससे फजर की नमाज के लिए उठना आसान हो। मसलन अलार्म वाली घड़ी में मुनासिब वक्त पर अलार्म सेट करके इसको मुनासिब जगह पर रखें और अगर इन अलार्म की राय करके सोएंगे तो इंशाअल्लाह फजर की नमाज जमात के साथ अदा करना आसान होगा। फिर भी अगर किसी दिन इत्तेफाक से बेदार होना ताखीर हो जाए तो जिस वक्त आँख खुले सबसे पहले नमाज अदा कर लें, इंशाअल्लाह ताखीर का कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन इसको मामूल बनाना गुनाह पर बदावत करना है, जिसकी भी तरह जायज नहीं है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिसमें वो सारी रात सो नहीं पाते और पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी नहीं सो सकते तब कई तरह की जहन और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं और इस बीमारी का शिकार आज हर दूसरा और तीसरा शख्स हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह से अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भाग रहा है। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर सोना नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसुकून नहीं रखती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद सो नहीं पाते। तो वो अल्लाह से यही सवाल जरूर करते होंगे कि ऐ अल्लाह मुझे नींद क्यों नहीं आती, आखिर क्या वजह है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाले इस आवाज को सुन पाते हैं जिनमें से कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। और यकीन करें जो लोग इस आवाज को सुन पाते हैं वो उस पर अमल करते हैं, इन्हें ताहिकायत कभी भी बेख्वाबी की शिकायत नहीं होगी। इस हवाले से एक सूफी नज़म है जिसे एक अमेरिकी मुस्लिम ने तर्जुमा किया है, जिसका टाइटल है दोबारा मत सो जाना। सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती हैं तुम्हारे लिए, दोबारा मत सोना। खुद से पूछो क्या तुम चाहते हो, दोबारा मत सोना। लोग दरवाजे की चौखट से आ जा रहे हैं, जहाँ से 2 दुनिया मिलती हैं, वो दरवाजा खोल और खुला है।
दोबारा मत सो जाना। इस नजम में बयान करदा दरवाजा हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया है, जहाँ से फरिश्ते हर सुबह और शाम को उतरते हैं, जिनका जिक्र इस हदीस में मिलता है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं और फजर और असर की नमाजों में ड्यूटियों पर आने वाले और रुखसत पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो इनमें से बहुत ज्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। तो वो जवाब देते हैं कि जब हमने इनको छोड़ा तो वो नमाज फजर पढ़ रहे थे, और जब इनके पास गए तब भी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। फजर और असर की नमाजों के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह यह है, और वो यह है कि साइंस कहती है सुबह सूरज तुलू होते वक्त और शाम को गुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन वाफिल मदार में मुहैया होती है, जिस वक्त माहौल तरोताजा होता है, और यह ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए इंतहाई जरूरी होती है। तो जो इस वक्त सो जाता है वो उस ताजा ऑक्सीजन से महरूम रह जाता है, और असर के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर कोई सो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से जब वो जागता है तो उसके सर में दर्द और तबीयत बोझिल हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। नमाज फजर के बारे में ऐसे बेशुमार फजाइल और भी हैं जिनको हम नहीं जान सकते। अगर इंसान उनको जान ले तो कभी कोताही ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो लोग इसा और फजर की फजीलत के बारे में जान ले तो वो जरूर नमाजों में हाजिर होंगे, चाहे इनको खुद को घसीटते हुए लाना पड़े। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाजों की कितनी फजीलत और अहमियत है, और दूसरी तरफ इनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही बढ़ती जा रही है। तो प्यारे नाज़रीन, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए चलते हैं आज की इस वीडियो के जानिब की ओर कि फजर के बाद सोने का क्या राज है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके हवाले से क्या हुक्म है। तो कुरान मजीद में बराह नमाज फजर के बाद सोने या जागने का हुक्म तफसील बयान नहीं हुआ, ताम अल्लाह ताला ने सुबह के वक्त को खास अहमियत दी है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल अल इमरान में, जिसका तर्जुमा है, और वो लोग जो सहर के वक्त इस्तग़फ़ार करते हैं। यह आयत बताती है कि सहर का वक्त रात के आखिरी हिस्से से फजर तक इबादत और दुआ और इस्तग़फ़ार का खास वक्त है। यह वक्त अल्लाह के करीब का बेहतरीन लम्हा है। इस तरह तर्जुमा और अपने रब की तस्वीर करो सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले। इस आयत में भी सुबह के वक्त अल्लाह की याद की तरगीब दी गई है। सुबह का वक्त मेहनत, दुआ, जिक्र और इबादत का वक्त है, न कि गफलत और नींद का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि फजर की नमाज के बाद तुलू आफ्ताब तक अल्लाह का जिक्र फरमाते। हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़कर अपनी जगह पर इसी तरह बैठे रहते यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाता। यह अमल जुलसूल बादल फजर कहलाता है, यानी फजर के बाद अल्लाह की याद में बैठे रहना। इससे मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार ये था कि फजर के बाद इबादत और जिक्र में मशगूल रहते, ना कि सोते। और एक और हदीस में आया है, अल्लाहुम्मा बारिक ला उम्मती फी बिला, अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में खैर और बरकत की दुआ की। इसलिए सुबह के वक्त जागकर काम का आगाज करना सुन्नत के मुताबिक और बाबरकत है। सवा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी फजर के बाद नींद से बचते और अपने काम का आगाज करते थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे, सुबह का वक्त बरकत वाला वक्त है, इसलिए तजारत का एहकाम करना अल्लाह की तरफ से खैर का बाइस है। लिहाजा सलफुल साहिरीन का भी यही मामूल था कि वो फजर के बाद दीन से परहेज करते और इसके हलाल के लिए मेहनत करते। प्यारे नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि नमाज फजर के बाद सोने की ममानत क्यों और कब सोना जायज है। नमाज फजर के बाद सोने में कई नुकसानात बयान किए गए हैं। मसलन बरकत का जाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त में बरकत की दुआ की। अगर इंसान इस वक्त को सोते हुए गुजारे तो वो इसकी बरकत से महरूम हो सकता है। गफलत और सुस्ती, फजर के बाद सोना इंसान को सुस्त और काहिल बना देता है, जबकि इस्लाम में चुस्ती और मेहनत की तरगीब दी गई है। रिज्क की कमी, उलमा ने बयान किया कि सुबह जल्दी बेदार होना और काम पर जाना रिज्क में इजाफे का जरिया बनता है, जबकि सोना रिज्क की तंगी का सबब बनता है। सेहत पर बुरा असर, फजर के बाद दोबारा सोना जिस्मानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। तहकीक से मालूम हुआ कि फितरी नींद का वक्त रात है। सुबह के बाद नींद इंसान के जिस्मानी निजाम के मुताबिक जिस्मानी निजाम को मुतासिर करती है। कब सोना जायज है? बाज़ उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स रात भर इबादत या जरूरी कामों में मशगूल रहा हो और उसे जिस्मानी आराम की जरूरत हो तो फजर के बाद कुछ देर आराम करना जायज है। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार जोहर से पहले थोड़ी देर सोते थे, साबित है, लेकिन फजर के बाद तवील नींद लेने का मामूल सुन्नत से साबित नहीं। अल्लामा इब्ने
रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फजर के बाद सोना बरकत के मुनाफी है। यह तबीयत में सुस्ती पैदा करता है और दिन भर के काम पर बुरा असर डालता है। आज के मसरूफ दौर में जब लोग रात देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, तो फजर के बाद जागने और दिन का आगाज करने की सुन्नत को जिंदा करना बहुत बड़ी नेमत है। फजर के बाद जागकर अल्लाह का जिक्र करना, कुरान की तिलावत करना, इल्म सीखना और अपने रोजमर्रा के काम अंजाम देना एक कामयाब जिंदगी का राज है। नमाज फजर के बाद सोना बुनियादी तौर पर खिलाफ से सुन्नत है। कुरान और सुन्नत में सुबह के वक्त को इबादत, जिक्र, दुआ और अमल के लिए खास किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त के लिए बरकत की दुआ है। इसलिए एक मोमिन को चाहिए कि फजर के बाद जागे, अल्लाह का जिक्र करे, कुरान की तिलावत करे और दिन भर की तैयारी करे। अलबत्ता अगर शदीद जरूरत हो तो इताल के बाद आराम किया जा सकता है। प्यारे नाज़रीन, फजर का वक्त दिन के सबसे बरकत लम्हात में से एक है। कुरान और हदीस में यह बात अल्लाह ताला फरमाता है, सुबह के वक्त और शाम के वक्त अपने रब का जिक्र करो। वो फजर के वक्त का जिक्र इंसान के दिन भर के अमाल को सवार देता है और रहमत और बरकत का सबब बनता है। इसलिए फजर के वक्त अस्कार और दुआएं करना निहायत अहम है। फजर का वक्त रहमतों के नुज़ूल का वक्त है। इस वक्त फरिश्ते अल्लाह के नेक बंदों के लिए दुआएं करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास दिन और रात के फरिश्ते आते हैं और वो नमाज फजर और नमाज असर में जमा होती हैं। इसलिए फजर के वक्त अल्लाह का जिक्र करना न सिर्फ दुनियावी सुकून का बाइस है, बल्कि आखिरत में कामयाबी की निवीद भी है। फजर के वक्त सबसे पहले नींद से बेदार होते ही यह दुआ पढ़ना मुस्तजब है। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जिसने हमें मौत के बाद जिंदगी दी और इस तरह ही लौट जाना है। इसके बाद नमाज फजर की अदायगी की जाए और नमाज फजर के बाद बैठकर अल्लाह का जिक्र करना बहुत फजीलत वाला अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज बाजमात अदा करे, फिर बैठकर अल्लाह का जिक्र करता है यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, फिर 2 रकात नमाज पढ़े और उसे हज और उम्रे का सवाब मिलता है। नमाज फजर के बाद सुबहान अल्लाह वही 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह बहुत कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू कसरत से नमाज फजर के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह ताला सारा दिन हिफाजत फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसके ऊपर जन्नत के दरमियान मौत के अलावा कोई चीज हायल नहीं। फजर के वक्त कुरान पाक की तिलावत खास तौर पर अफजल है। अल्लाह ताला फरमाता है, और कुरान बेशक कुरान फजर हाजिर होने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल हमारी जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखिए। अल्लाह।